So once again, warm welcome all of you in this session. Now, today we are going to learn about the death well. That is death well. Of course, this is the application of the circular motion that we have learned in the previous lecture. Whatever we have learned in the previous lesson. Yes, we have learned about the circular motion, that is centripetal force, and centrifugal force in last lecture. Centrifugal force. Yes, what is the formula for the centrifugal force? That is mv square by r negative, that is opposite to the direction of the centripetal force. Also another formula is that mr omega square. So these are the two formulas for the centripetal and the centrifugal, okay, force. Now today we have to learn about the applications. What we are going to learn today, that is applications of these concepts. In last two sessions we have learned about this concept. Now we have to apply this concept where it is applicable in practical, in day to day life situations, where it is applicable, and where it is useful. So these concepts, centripetal force, centrifugal force, are very useful in case of an banking of road, okay, and in case of an like the such type of concept like death well, what actually happens over that we will learn today. So let us start with the session death well. ओके, यालाच हिंदीमध्ये म्हटलं जातं दॅट इज मौत का कुआं. बराबर है, आप सभी ने देखा होगा डेथ वेल. सो टुडे विल लर्न अबाउट द कन्सेप्ट बिहाइंड दिस. काय असं माहितीये तुम्हाला, इन दिस डेथ वेल bicycle rider or the car, four-wheeler rider will moving in circular path, but still they are not falling inside. कुठे इथे fall होत नाहीये. But for that, to remain in the circular motion, you know that to remain in that particular circular motion they required velocity. They required certain velocity. Then and only then they are able to keep their motion. तेव्हाच ते काय मोशन मध्ये राहणं पॉसिबल आहे त्यांचं. अदरवाइज दे विल स्किप डाऊन. बरोबर. सो इनिशियली इफ ही लेस स्पीडला ते स्टार्ट करतात आणि खूप नंतर काय केलं, स्पीड इन्क्रीज करतात. बरोबर आहे. आणि स्पीड इन्क्रीज केल्यानंतर त्या मोशन मध्ये ते राहतात. बरोबर आहे. सो काहीतरी एक स्पेसिफिक स्पीड असेल ती त्यांना तिथे ठेवत असेल ड्यू टू द ऑफकोर्स ड्यू टू द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. So that we have to calculate what is the necessary speed in that case. So we are in this case we are going to calculate the necessary necessary speed for the bicycle rider, necessary speed, or which is essential speed for, okay, the motor vehicle rider that we are going to calculate. Motor vehicle rider, barabar. So we are going to do all this calculation now. So before going to start with the topic, you should must know the concept of physics. Okay, concept of friction. यहाँ पे तुम्हें friction का concept पता होना चाहिए before going to learn this particular concepts. So each and every body when it is in motion, बराबर है, आपको पता है कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, जिस डायरेक्शन में मोशन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन. पता है कि नहीं आपको, जिस डायरेक्शन में मोशन में, लेट सपोज दिस इज द बॉडी, ओके, आई विल गिव यू द नॉट अ कंप्लीट बट वॉट एव्हर द इसेन्शियल कन्सेप्ट जे आपल्याला लागतंय तेवढे कन्सेप्ट मी तुम्हाला इथे फीड करतो आहे. ठीक आहे. ऍक्च्युअली फ्रिक्शन हा एक 11th एक कम्प्लीट युनिट आहे. त्यामध्ये भरपूर कन्सेप्ट आहे ऍक्च्युअली लर्निंग, पण जे इसेन्शियल आहे ते मी इथे तुम्हाला सांगतोय बघा. काय, लेट सपोज दिस इज द ब्लॉक विच इज प्लेस ओव्हर द सर्फेस. एका फिक्स सर्फेसवर एक ब्लॉक ठेवलेला आहे. And suppose you are going to push, or the motion of this particular block in this direction, कुठे आहे मोशन, या डायरेक्शन ला ब्लॉक मोशन मध्ये आहे. बरोबर आहे. then frictional force which is offered by this fixed surface, it is exactly opposite to that direction of motion. कसं असणार ते, एक्झॅक्टली अपोजिट असणार टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. we will let's see the first of all friction concept in short बघतोय आपण. ही जी कन्सेप्ट आहे फ्रिक्शनची इन शॉर्ट बघतो आहे, नाहीतर याला कंप्लीट एक युनिट आहे फ्रिक्शन. बरोबर. त्याच्यावर एक स्पेशल व्हिडिओ मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देईल, लिंक पाठवून देईल. ओके, तो व्हिडिओ नक्की बघा. ऑफकोर्स माझाच आहे पण नीट अँड जेडबल पॉईंट ऑफ व्ह्यू तो कव्हर केलेला आहे. सो नाव सो फ्रिक्शन तो थोडाफार इंट्रोडक्शन देऊन देतो. नाउ सपोज you, this particular person,
ही वॉन्ट टू ब्रिंग दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, इकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतोय इसको इकडे. ओके, हा स्टुडंट, लेट अस सपोज दिस स्टुडंट विल ट्राइंग टू कीप दिस पर्टिक्युलर ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, या डायरेक्शन त्याला ओढतो आहे किंवा काय करतोय त्याला आपण पुल करतो, बरोबर. सपोज दिस पर्टिक्युलर ब्लॉक इट इज पुल. नेक्स्ट, the surface which is in contact with this area, बरोबर. या ब्लॉकच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जो काही सरफेस एरिया आहे, बरोबर, हा काय करणार, इट ऑफर्ड द फ्रिक्शनल फोर्स, बरोबर आहे. हा काय करणार, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड करणार, बरोबर. इथे दिसतोय तुम्हाला फ्रिक्शनल फोर्स, तो त्या मोशनला काय करणार, अपोज करणार, बरोबर आहे. तो त्या मोशनला काय करणार, अपोज करणार, बरोबर. इफ द अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, then frictional force will be in the opposite direction. If you see applied force कुठे आहे, या डायरेक्शनला आहे, and frictional force कुठे आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट डिरेक्शनला असतो. क्लिअर. इथून एक कन्सेप्ट घ्यायची आहे तुम्हाला, ज्या डायरेक्शननी तुमचा अप्लाइड फोर्स असेल त्याच्या अपोजिट डायरेक्शननी काय असणार, फ्रिक्शनल फोर्स. एक छोटीशी कन्सेप्ट सांगतोय, बरोबर, कारण ते आता युजफुल ठरणार आहे पुढे, बँकिंग ऑफ रोड पर्यंत ही युजफुल ठरणार आहे पुढे तुम्हाला. ओके, सो लक्षात ठेवा, फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स, फोर्स या डायरेक्शननी अप्लाय करत आहे, फ्रिक्शनल फोर्स त्याच्या अपोजिट डायरेक्शननी काम करणार, बरोबर आहे, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शननी काम करणार. ओके, सो नेक्स्ट कन्सेप्ट रिलेटेड टू द फ्रिक्शन. येस, मोशन बघायचं. बघा आता मोशन कुठल्या डायरेक्शननी आहे, बघा, पुशिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स कुठल्या डायरेक्शननी आहे, या डायरेक्शन, बरोबर. मोशन कुठल्या डायरेक्शननी होणार, या डायरेक्शन. पण हा जो पर्टिक्युलर सरफेस आहे, बरोबर, हा सरफेस, ज्या सरफेसवर हा एक ब्लॉक ठेवलेला आहे, बरोबर, हा ब्लॉक ठेवलेला आहे, हा सरफेस काय करणार, त्याला त्याच ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न करणार किंवा त्याच्या अपोजिट डायरेक्शननी काय करणार, फोर्स अप्लाय करणार. त्यालाच आपण काय म्हणतो, दॅट इज फ्रिक्शनल फोर्स. काय म्हणतो आपण त्याला, दॅट इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, दॅट इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर आहे. सो नाउ व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस फोर्स, या फोर्सची मॅग्निट्यूड काय असणार, दिस फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, हॅव्हिंग द मॅग्निट्यूड that is frictional Fr, denoted generally frictional force कशाने डिनोट केला जातो, F suffix R, बराबर है. it is equal to mu coefficient of friction into the normal reaction. so this is the formula. हा फॉर्म्युला आपल्याला आता यूज करायचा आहे. ओके, डेथ वेल पासनं तर पुढे बँकिंग ऑफ रोड्स पर्यंत कम्प्लिटली यूज करणार आहोत हा फॉर्म्युला. त्यामुळे तुम्हाला थोडंसं इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे या फॉर्म्युल्याचं. ठीक आहे. So here Fr is what, is nothing but the frictional force, mu is the coefficient of friction between the two surfaces, n is the normal reaction. Suppose if you have to explain, let us explain this particular concept now. Okay, now here let's suppose this is the surface, and on the surface let's suppose this is the block. ठीक, एक ब्लॉक वहां पर रिजिड होना चाहिए, सॉलिडिफाई कर दी ब्लॉक. ठीक है, एक ब्लॉक वहां पर, बराबर. नाउ इन दिस केस let's suppose the weight of the block is W. weight of the block is what, W, बराबर है. तो weight कुठे ऍक्ट होणार, yes, this particular weight it is acting in the downward direction. weight कुठे ऍक्ट होणार आहे बघा, काल पण तुम्हाला मी थोडंसं रिझोल्युशन शिकवलेलं आहे. ऍक्च्युली याला म्हटलं जातं फ्री बॉडी डायग्राम. आणि फिजिक्स मध्ये आपण काय घेतो, in physics we will consider all these bodies as a point mass. काय consider करतो आपण, point mass in case of an free body diagram. So for this particular block, so in this case weight of the block it is acting in the vertically downward. weight काय असतं, that is mg, which is acting in the vertically downward direction. Similarly yes, similarly Newton's third law, equal and opposite reaction. This particular surface also exerts equal and opposite reaction, that is normal reaction म्हणतो आपण त्याला, in equal and opposite equal and opposite direction. weight downward असेल तर काय होणार, weight downward असेल weight downward असेल so normal reaction will be in the vertically upward direction. कसे असणार, सरफेसला परपेंडिक्युलर असतं नॉर्मल रिएक्शन. क्लियर, सरफेसला परपेंडिक्युलर असणार नॉर्मल रिएक्शन. so this particular normal reaction will be perpendicular to the contact surface here. okay, now
weight will be acting in the vertically downward direction. So now the frictional force, suppose the motion is in this direction, motion कुठल्या डायरेक्शन नी आहे, या बरोबर, मोशन या डायरेक्शन नी आहे, म्हणजे फोर्स बघा इकडे पुलिंग फोर्स आहे, लेट सपोज फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. सो द फ्रिक्शनल फोर्स कुठे असणार, अपोजिट टू दिस पर्टिक्युलर, अपोजिट टू दिस डिरेक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स कुठे असणार, या डायरेक्शन, बराबर आहे. सो फ्रिक्शनल फोर्स Fr will be in this direction. So this particular frictional force, it depends on, yes, it depends on what, coefficient of friction. फ्रिक्शनल फोर्स कधी जास्त असणार, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जास्त असेल दोन सरफेस मधलं, दोन कॉन्टॅक्ट सरफेस मधलं फ्रिक्शन जास्त असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स जास्त असणार. फ्रिक्शन कमी असेल तर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काय असणार, जरी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कमी असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स पण काय असणार, कमी असणार. जस्ट म्हटलं मी हे स्लिपरी आहे, याच्यावर सपोज ऑइल प्लेस केलेला आहे आणि त्यावरनं तुम्ही चालत आहे तर काय होणार, in that case the friction will be less, coefficient of friction will become less. So in that case frictional force will also become less, frictional force will also become less in that case. ठीक है. So Fr is directly proportional to what, mu. So यहाँ पे that is the constant जो हम लेते हैं that is nothing but the normal force. So Fr क्या आएगा तुम्हारा फॉर्मूला हमेशा याद रखना, that is mu into normal reaction. ठीक है, mu into normal reaction. तो ये जो बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज सिंस नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, इट इज इक्वल टू mg. सो मोस्ट ऑफ द केस में हम इस फ्रिक्शनल फोर्स में क्या लिखेंगे, Fr इज इक्वल टू म्यू mg लिखेंगे. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स में हम क्या लिखेंगे, म्यू mg लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स में हम लिखेंगे म्यू mg. ओके, वेयर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. देख रहा हो, यहाँ पे देख रहे हो तुम्हें, ठीक है. तो हर एक केस में नहीं आएगा, पर मोस्ट ऑफ द केस में हम नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg लेंगे. सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या बन गया तुम्हारा, म्यू इनटू m इनटू g, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था फ्रिक्शन के रिलेटेड, बट स्टिल इट इज वेरी लेस फॉर द फ्रिक्शन. ओके, so once again I will ask you one question now. In this case, suppose this is the wheel which is rotating on the road. ओके, और इस डायरेक्शन से तुम्हारा व्हील रोटेट कर रहा है, बराबर है. व्हील देखो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमको, व्हील देखो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बराबर है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तुम्हारा व्हील रोटेट कर रहा है, बराबर है. तो मुझे बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो. सो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो यहाँ पे, हाँ, मोशन इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मोशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, बराबर है. तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लाएंगे, अपोजिट टू दिस. यहाँ पे देखो मोशन कैसा चल रहा है इसका, इन दिस डायरेक्शन. सो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी फॉरवर्ड. तो यही फोर्स है जो तुम्हें आगे खींचता है. तुम्हारी व्हीकल, कार या बाइक जो भी रन हो रही है ऑन रोड सरफेस, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स. क्योंकि बाइक का व्हील तो तुम्हें पीछे खींच रहा है, मगर फ्रिक्शन तुम्हें कहाँ पे खींच रहा है, आगे. सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, यू आर मूविंग फॉरवर्ड. सो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तुम चल रहे हो, तुम्हारी बाइक चल रही है, तुम्हारी कार चल रही है, बराबर है. सो यहाँ पे वैल्यू तुम्हें लर्न चाहिए, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन. क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स. तो मैंने पूछा है अगर तुमको फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा तो क्या बताओगे, म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. क्लियर है. सो वंस अगेन आई विल समराइज द सेशन. यस, व्हाट वी हैव लर्न. हाँ, हमें तो डेथ वेल स्टार्ट करना है, मगर डेथ वेल में एक कंसेप्ट इसेंशियल है तुम्हारी. ठीक है, सो डेथ वेल स्टार्ट किया था, उसके बाद में देखा था हमने फ्रिक्शन कंसेप्ट, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. देन पुशिंग फोर्स, यस, पुशिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. देन वैल्यू उसका F is equal to mu into n, where mu is the coefficient of friction, n is the normal force. Clear. Now we have to talk about the
बाइसिकल राइडर एंड दी डेथ वेल। ठीक है, सो क्या होता है इन एक्चुअल डेथ वेल में, अभी डेथ वेल देखेंगे। डेथ वेल में ऐसा ही देखता हूँ ना, तुम अगर बाइक है तो बाइक किस तरीके से घूम रही है, ठीक है। अभी देखा ना डेथ वेल में क्या रहता है, बराबर है, बाइक है ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है बाइक, बराबर है। सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द सेट स्पीड फॉर दैट बाइकर। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, एक सेट स्पीड कैलकुलेट करना है, किसके लिए, उस बाइक के लिए, सो दैट इट विल कीप इट सर्कुलर मोशन, वो सर्कुलर मोशन में रह सकता है। अदरवाइज मतलब हमें क्या करना है, उसको नीचे फॉल, नीचे गिरने नहीं देना है, उस बाइसिकल, उस राइडर को हमें नीचे गिरने नहीं देना है, उसको पोर्शन में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सेट स्पीड क्या होगी वो हमें यहाँ पे फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें निकालना है, सेट स्पीड फॉर द राइडर और द बाइसिकल, व्हाट इज द सेट स्पीड। तो डेथ वेल में इस तरीके से वो घूमेगा, बराबर है, डेथ वेल में इसी तरीके से उसका एक्चुअल डायग्राम दिखेगा, बराबर है। देखो, सो इन एक्चुअल, ओके, हम जब इसको कंसीडर करते हैं तो हम इसको कंसीडर करते हैं डेथ वेल को, लेट सपोज दिस इज द डेथ वेल, एक डेथ वेल है ये, ठीक है। डेथ वेल है यानी कि इसका सर्कुलर, ये सर्कुलर है बेटा, और ठीक है सर्कुलर है। हम फिजिक्स में किसी भी मास को, कितना भी बड़ा मास रहे, हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, एज अ पॉइंट मास, बराबर है। पॉइंट मास में सब आएगा, इसका टायर का मास, इसका बॉडी का, चेसिस का, इसका खुद का मास, सब का मास, हेलमेट का मास, सब मास आएंगे, दैट इज पॉइंट मास, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा डेथ वेल है, ठीक है, क्या है ये, डेथ वेल, नाम देना पड़ेगा इसको, डेथ वेल, ये तुम्हारा डेथ वेल, ठीक है, डेथ वेल, बराबर है, मौत का कुआं। तो हम इसको एक पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट मास। फिजिक्स में हम किसी को भी पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इस कंप्लीट बाइसिकल राइडर सबको हमने पॉइंट मास कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अभी बताओ, अभी इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, बताओ। इसका वेट जो है वो वेट कहाँ पे होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका वेट कहाँ पे होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर है। वेट इसका, इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। वेट कहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स देखो यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द टायर एंड दिस सरफेस, okay, tire and this particular surface, this provide you the friction, and this frictional force will be is in the vertically upward direction. So frictional force कहाँ पे लगेगा, vertically upward direction में लगेगा, बराबर है। frictional force will be in the vertically upward direction, that is nothing but the Fr, okay, Fr, frictional force is in the vertically upward direction, clear है। और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर कोई तो भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, बराबर, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, बराबर, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा। so this is nothing but the normal reactions which is exerted by this surface, this particular surface on that body. so normal reaction is in this direction, normal reaction कहाँ पे रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा normal reaction, बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन रहेगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, क्लियर है। सो दिस इज द पॉइंट मास डायग्राम फॉर द डेथ वेल, सभी पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस एक हम कंबाइनली इस पूरे मास को क्या कंसीडर कर रहे हैं, एज अ मास यम, बराबर है। लेट सपोज दिस बाइसिकल और राइडर इट मूव्स विथ एन वेलोसिटी v, ठीक है। ये जो बाइसिकल है, राइडर है, जिसका मास यम है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बराबर है। और सेंटर की, और जो भी सेंटर है इसका, ओके, उसका हम सर्कुलर मोशन का रेडियस ले लेंगे r, क्या रेडियस, दैट इज r, स्मॉल r ले लेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या है, दैट इज स्मॉल r, क्लियर, ओके। मास है m, v है वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। और फिजिक्स का सभी कंसेप्ट देख ले, फोर्सेस, सभी फोर्सेस जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं वो भी हम यहाँ पे डिनोट किया है, सभी। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड द वेट व्हिच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, ओके, नोट डाउन किया है सबने, यस। डेरिवेशन लेंगे अभी, यस, डेरिवेशन लेंगे, यस। सो फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन,
यस चलो बताओ मुझे अभी. नाउ इन दिस केस when this rider or biker will not fall, हा जो रायडर आहे किंवा बायकर आहे हा फॉल कधी होणार नाही. हा ये स्टार्ट मध्ये कोण आहे सर? नेटवर्क प्रॉब्लम सर, प्लीज रिपीट वन मोर टाइम. कहां से तुम? ओके कहां से तुम? ठीक है देखो इधर. ठीक है सो व्हाट इज द सेल्फ स्पीड? सेल्फ स्पीड कैलकुलेट करना है. ठीक है मुझे बताओ व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस बाइकर सो दैट इट डज नॉट फॉल. वो नीचे नहीं गिरना चाहिए. दिस पर्टिकुलर राइडर शुड नॉट फॉल बिलो, नीचे नहीं गिरना चाहिए. उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए मुझे बताओ. तुम्हें अगर तुम यहाँ पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, तुम नीचे नहीं गिरने चाहिए. क्या कंडीशन होना चाहिए मुझे बताओ. क्या कंडीशन होनी चाहिए तुम्हारे लिए? यस बताओ फास्ट. कंडीशन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन हाँ फर्स्ट कंडीशन बोलो. दैट इज यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो भी प्रोवाइडेड है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेट दैट इज mg. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ये कंडीशन होनी चाहिए तभी जाके तुम नीचे फॉल नहीं करोगे. अगर फ्रिक्शनल फोर्स देखो वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर है, खींच रहा है तुम्हें, बराबर है, और वेट तुम्हें नीचे खींच रहा है. सो इफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज सफिशिएंट देन यू विल नॉट फॉल बिलो. तुम नीचे नहीं फॉल करोगे. so that frictional force should be greater than or equal to mg. so this is the condition number 1. so wrote down this is the equation number 1. so conditions for do not fall, नीचे नहीं फॉल करेगा. कंडीशन क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg. क्लियर है? अभी हमें पता है सेकेंड स्टेटमेंट. अभी नॉर्मल रिएक्शन जो है, बराबर है, अभी ये नॉर्मल रिएक्शन डेथ वेल इनसाइड है, बराबर है, इस तरीके से घूम रहा है, बराबर है. तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा मुझे बताओ. हो गए सभी कंसेप्ट. सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया है. मुझे बताओ दिस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड विच फोर्स? कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा ये नॉर्मल रिएक्शन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स. बाहर नहीं, नीचे अंदर है, ये अंदर की तरफ है. सो दिस पर्टिकुलर नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड यू. कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा? बोलो जल्दी. दैट इज, बोलो फास्ट आंसर दो. दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा रहता है? टुवर्ड द सेंटर. सो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड, लिखते जाओ, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड the necessary centripetal force. therefore yes, और ऐसा भी बोल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन इट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर है. तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है तुम्हारा? mv² बाय आर. नॉर्मल रिएक्शन क्या रहता है? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv² बाय आर. सो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? बोलो जल्दी. So normal reaction is equal to mv² by r. Clear है? normal reaction clear? yes लिखा, बराबर. so now in first condition we know that, note down करो simultaneously, we know that, क्या पता है तुमको? yes what you know? we know that frictional force is equal to mu into n, बराबर है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है? म्यू इंटू एन. देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू. एन की जगह पे क्या पुट करोगे? mv² बाय आर. एन की जगह पे क्या पुट करोगे? mv² बाय आर. सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या मिल गया तुम्हें? Fr इज इक्वल टू म्यू इंटू mv² बाय आर. क्लियर है? सो नोट डाउन दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको अगर हम बोलते इक्वेशन नंबर 2, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. नाउ ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, नाउ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन ले लो. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें ये पुट करना है.
कौन सी, म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो एफ आर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। क्लियर है, कंडीशन मिल गया। ओके, सो एम वी स्क्वायर बाय आर, म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। चलो यहां तक के क्लियर है। ओके, करू इरेज, इरेज करायचं का, क्लियर, चला। हाँ, नाउ टेल मी, क्या कैंसिल हो जाएंगे इस इक्वेशन में, क्या कैंसिल हो जाएगा, बोलो जल्दी फास्ट, क्या कैंसिल हो जाएगा, यम एंड एम गेट कैंसल। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, देयरफॉर, 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 चलो बताओ, म्यू वी स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो हमें क्या चाहिए थी, सेट स्पीड निकालना है, तो हमें v निकालना है, तो v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g इंटू आर डिवाइडेड बाय म्यू, बराबर है, डिवाइडेड बाय म्यू। सो हियर व्हाट इज द सेट स्पीड, सो v क्या बन जाएगा, दैट v इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g r by mu. So this is the safe speed for that particular bike to keep itself safe. So त्याला सेफ ठेवण्यासाठी ही त्याची स्पीड असणार, बरोबर आहे. ओके, दॅट इज शुड बी ग्रेटर दॅन, यापेक्षा जास्त असायला पाहिजे, यापेक्षा कमी असेल तर तो काय होणार, फॉल होणार. ग्रेटर दॅन म्हटलं आहे, बरोबर आहे, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू, यस, greater than or equal to, v should be greater than or equal to under root of gr by u. अगर तुम्हें मिनिमम स्पीड पूछा है, दैट इज v मिनिमम, कम से कम स्पीड कितनी चाहिए, कम से कम स्पीड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्पीड टू कीप दैट मोटरसाइकिल इन सर्कुलर मोशन, तो उसको सर्कुलर मोशन में रहने के लिए कम से कम स्पीड कितनी लगेगी, दैट इज जी आर बाय u under root of gr by u. This is the minimum speed that is required. Okay, clear, note down karo fast. So this is the minimum speed. अगर यहां से वो स्पीड बढ़ता है, ठीक है, तो चलेगा, मगर इससे कम स्पीड नहीं चलेगी, इससे कम स्पीड नहीं चलेगी। इससे कम स्पीड अगर हो गई जी आर बाई यू, जो भी हमें यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू बता रहे हो, ठीक है, जी पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पुट करेंगे, ओके, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। उस वेलोसिटी से अगर वो घूमता है तो वो सर्कुलर मोशन में रहेगा, उससे वेलोसिटी कम हो गई तो वो नीचे आने लगेगा और गिर जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर से बता सकते हैं, मगर तुम्हें पता है बाइक का हमारा स्पीडोमीटर वेलोसिटी किस में मेजर करता है, किसमें मेजर करता है वेलोसिटी, यस, किसमें मेजर करता है वेलोसिटी, स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है, बराबर है ना। वो ओमेगा थोड़ी देता है हमें, ओमेगा हमारा स्पीडोमीटर बाइक का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रियर व्हील फ्रंट व्हील थोड़ी बताए, तो वो भी बताता है। तो यही फॉर्मूला ज्यादा तौर पे यूज होंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं यूज होगा ज्यादा, क्लियर। ओके, डन। तो अभी कार के लिए भी यही स्पीड रहेगी। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन नाउ। ओके, हमें इसमें क्या निकालना था, सेट स्पीड निकालना है बाइक के लिए। हमें क्या निकालना है, बाइक के लिए सेट स्पीड निकालना है, सो दैट इट विल रिमेन इन द सर्कुलर मोशन। ओके, तो उसके लिए हमने पहले फ्रिक्शन पढ़ा, फ्रिक्शन क्या रहता है, बराबर है, तो फ्रिक्शन, हाँ, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन रहता है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन रहता है,
मैंने तुमको पहले बता दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो क्या कंडीशन होगी, दिस पर्टिकुलर बाइसिकल और राइडर शुड नॉट फॉल बिलो, नीचे फॉल नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, जो भी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ज्यादा चाहिए, दिस पर्टिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ दी mg, ये ज्यादा चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द mg, so that it should not fall नहीं करेगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो। So we will use this particular conditions, Fr should be greater than equal to mg, then normal reaction, हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और द सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज नथिंग बट द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सो सेंटर की तरफ फोर्स है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। हम सेंट्रीफ्यूगल से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल में क्या बताएंगे कि यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, सो नॉर्मल रिएक्शन कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा, वैल्यू सेम रहेगी, mv स्क्वायर बाय r ही रहेगा, ठीक है। वी नो दैट, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू इनटू n, सो n पता है, n क्या है, mv स्क्वायर बाय r, पुट कर दिया यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r, so frictional force is equal to mu into mv square by r. Now we will get this equation. Now from equation 1 and equation 4, equation 4 की जो भी वैल्यू है fr की हम वो कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। so इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, mu mv square by r should be greater than or equal to mg, then here mm गेट क्या होगा, m क्या होगा, कैंसल, बराबर है, m क्या हो जाएगा, कैंसल, so mu v square by r greater than or equal to g, greater than or equal to g, clear, then v square क्या मिलेगा तुम्हें, v square is equal to gr by mu and v greater than or equal to gr by mu, clear, v minimum is equal to gr by mu. So this is the minimum value, maximum इसके ज्यादा भी रह सकती है, ठीक है, मगर this is the minimum value that we have to keep, कम से कम वैल्यू तुम्हें कितनी मेंटेन करनी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय डेथ वेल में, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ मुझे बताओ ये मास के ऊपर डिपेंड है क्या, वेदर दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी वेदर इट इज डिपेंड ऑन मास, मास ऑफ द बाइसिकल और राइडर के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं, किसके ऊपर डिपेंड है ये वैल्यू, आर, रेडियस के ऊपर, यानी कि जितना बड़ा सर्कल रहेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बराबर है, छोटा सर्कल रहेगा तो स्पीड थोड़ी कम रहेगी तो चलेगी। नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना कम स्पीड तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर v मिनिमम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट u कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, बराबर है, सो दैट v शुड बी मिनिमम, क्योंकि वो अकेला थोड़ी घूम रहा है, आपने देखा होगा उसके साथ में उसके साथी भी घूम रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा रखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा रखेंगे, इसका मतलब अच्छे क्वालिटी के टायर यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टायर अच्छे क्वालिटी के यूज करेंगे म्यू, उसका फ्रिक्शनल ग्रिप अच्छा होगा, बराबर है, सो दैट ही उनको कुछ बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी पड़ेगी, ये मिनिमम स्पीड बढ़ा, ये जो भी मिनिमम स्पीड रहेंगी उनकी 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल जाएगा, नहीं तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन घट गया ना तो उन्हें उनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी टू कीप इनटू द सर्कुलर मोशन। तो ऑल दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेथ वेल, ये कंसेप्ट आगे भी आने वाली है डेथ वेल में। सो अभी बाइसिकल के बारे में हमने बोला था, ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू व्हाट, फोर व्हीलर कार के केस में भी यही होगा, फोर व्हीलर कार के केस में भी क्या होगा, यही होगा, दैट इज v, दैट इज सेफ स्पीड फॉर द कार, it is greater than or equal to under root of gr by mu, g is acceleration due to gravity, where okay g is equal to acceleration due to gravity, ठीक है, r is the radius of circular track, ठीक है, radius of circular